Hello and welcome everyone. This is the first video for February current affairs. January की जो तीन current affairs की video हैं, they have already been uploaded in the channel, so you can watch it there. So we'll be starting right away. Okay. So the first news for the month, that is the appointment of new Chief Election Commissioner. हमारे नए Chief Election Commissioner appoint हुए हैं. That is 26th Chief Election Commissioner has been appointed, and his name is Mr. Gyanesh Kumar, and he has replaced the previous commissioner, that was Mr. Rajiv Kumar. तो इससे पहले जो 25th Chief Election Commissioner थे, that was Mr. Rajiv Kumar, and he has been replaced by Mr. Gyanesh Kumar. Remember, important provision क्या है? This might come as a question, directly question आपके पास आ सकता है. Who has been elected as the new Chief Election Commissioner? So that is Mr. Gyanesh Kumar. Now, important provisions that we will have to discuss in this one is that the appointment of Chief Election Commissioner is done by President. इनको President appoint करते हैं. That is as per the provision of article 324. आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के जो आर्टिकल्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू इलेक्शन कमीशन, और उसमें आर्टिकल 324 के अंडर वी हैव द प्रोविजन दैट प्रेसिडेंट इज द वन हु विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अभी करेंटली हमारे पास वी हैव वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट असाइड फ्रॉम दैट वी हैव टू इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल. तो दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी हमारे पास हैं. सो रिमेंबर, ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, and there is as per the this, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो यहाँ पे वी हैव आफ्टर 2023 में एक एक्ट आया था, उसके बाद से सम न्यू प्रोविजंस हैव बीन एडेड दैट नाउ देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एंड अ यूनियन मिनिस्टर दैट इज चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो इस केस में इट वाज अवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, तो वो यहाँ पर थे जो इस कमेटी में के जो मेंबर थे. सो रिमेंबर, दिस इज अ न्यू प्रोविजन दैट हैज बीन एडेड आफ्टर एन एक्ट दैट केम इन 2023 का एक एक्ट आया था, उसके थ्रू विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. सो दिस इज द बेसिकली द सिलेक्शन कमेटी. तो ये सिलेक्शन कमेटी, दे विल सेलेक्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड देन दे विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फिर उनपे उनके नाम के आगे इन दैट ऑफिशियल document he will sign that this guy has been appointed as the chief election commissioner. And another provision regarding chief election commissioner के removal की जब हम बात करते हैं, so you will see that this is very similar to the removal of supreme court judge. जिस वे में supreme court judge को remove किया जाता है, उसी वे में we also see that the removal of chief election commissioner is also done. So this is basically the important provisions from this particular न्यूज है. ज्ञानेश कुमार, मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ये हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, एंड ही इज रिमेंबर द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बट सम अदर प्रोविजन, स्टैटिक प्रोविजन, इसमें जो स्टैटिक पोर्शन की हम बात करते हैं, तो यू कैन सी दैट आर्टिकल 324 के अंडर वी हैव द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बट एज पर द प्रोविजन ऑफ अ न्यू एक्ट, दैट इज द इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 2023. इस इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 के बाद कुछ प्रोविजंस में चेंजेस आए. दैट इज देयर हैज बीन एन सिलेक्शन कमिटी. एक सिलेक्शन कमिटी यहाँ पे रहेगी जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, एंड who will be the member of this committee? It will be the prime minister, who will be the chairperson, and leader of opposition will be the second member, and union cabinet minister who is nominated by the PM. So this committee will basically recommend the candidate to president, और फिर president वहां पे select करेंगे that this he will be appointing that. Some other provision regarding this one, that important चीज इस provision में और क्या है, that is the resignation and removal की जब हम बात करते हैं of the chief election commissioner. So you can see that chief election commissioner as well as election commissioner, they can resign by writing to the president. अगर उन्होंने resign करना है तो they will have to write to the president. Second is that if we want to remove them, अगर उनको remove करना है तो removal की condition क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए you require the same procedure as is required in case of Supreme Court judge. While election commissioner की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे you will see that it only requires the recommendation of the chief election commissioner to remove the election commissioners. And remember, India में we have the chief election commissioner and two election commissioners as well. Another thing regarding the term of office of election commission, you can see that ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो द ड्यूरेशन इज ईदर 6 years और until 65 years of age. या तो इलेक्शन कमिश्नर को 6 साल हो जाए इन दैट सेम पोस्ट, और he attains an age of 65, या फिर उनकी एज 65 हो जाए. तो जो भी अर्लियर होगा, जो भी पहले होगा, that will basically be the end of that election chief election commissioner. And
टर्म्स और कंडीशन में देयर इज वन इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इफ देयर इज अ पर्सन एंड ही हैज बिकम एन इलेक्शन कमिश्नर, कोई एक पर्सन है वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे एंड नाउ ही हैज बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वहां पर उनका टेन्योर कैन नॉट एक्सीड मोर देन 6 years, यानी कि ही कैन नॉट रिमेन इन द सेम पोस्ट फॉर मोर देन 6 years, that is including the election commissioner and the chief election commissioner. And remove and one more thing is that no reappointment is also allowed in this particular case. तो ये कुछ provisions है 2023 में जो इलेक्शन कमीशन एक्ट आया था उसके. So this was the first news for the day, that is the appointment of new chief election commissioner, that is Mr. Gyanesh Kumar, who is the 26th chief election commissioner, and you can see that appointment unka president ne kiya under the provisions of article 324. Remember article 324 to article 329, they basically talk about election. तो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें इस पार्ट में हमें यहाँ पे मिलती हैं. सो उसी में आर्टिकल 324 में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द, you can say the president, but procedure कैसा रहेगा उसको लेके the act has been made as well. So this was all about this particular news. Moving on, the next news for the day is regarding the state of Manipur. तो मणिपुर में पिछले कुछ टाइम से you would have all seen that वहाँ पे clashes चल रहे हैं between the two communities, that is the Meiteis and the Kukis. तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, after the resignation of the chief minister, that is Mr. N. Biren Singh, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर एन बीरेन सिंह, उन्होंने वहाँ पे रिजाइन किया एंड आफ्टर दैट रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर. मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है एंड दिस हैज बीन डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356. आर्टिकल 356 and article 365, provisions of article 365, they basically provide for president's rule in a particular state. तो दो चीजें, दो आर्टिकल्स है हमारे पास, 356 which basically and along with some provisions in article 365 भी इसी बारे में बात करता है, that there will be the dissolution of the state assembly. प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि जो स्टेट की असेंबली है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी एंड इट विल बी द प्रेसिडेंट, एवरीथिंग विल गो थ्रू द president, through the governor to the president. So this rule has been imposed in the state of Manipur after the recent clashes that have been going on since last 2 years. So Manipur mein another important thing from this particular one is that Meiteis and Kukis, ये दो ट्राइब्स हैं जहां पर जिनके बीच में द क्लैशेस आर मेनली गोइंग ऑन. तो यहाँ पर इनके हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर था which said that Meiteis will be included into scheduled tribes. तो उसके बाद से यहाँ पे क्लैशेस इरप्ट हुए हैं और रेगुलरली द कंडीशन इज really bad in this particular state. So Manipur, another important news from the month of Feb, that is Manipur mein they have president's rule has been applied in this particular state. And remember this is the 11th time that Manipur mein aapka this president's rule has been applied. सबसे ज्यादा बार 11वीं बार यहाँ पर फिर से आपने in this particular state, that is मणिपुर में 11वीं बार आप देखेंगे कि president's rule यहाँ पर लगा दिया गया है. So this was basically the news from this particular part. Now important provision यहाँ पर आपके पास क्या आता है, that comes from the static part, that is regarding the emergency provisions of India. So part 18 जो हमारा है, that is part 18 of the constitution, it gives us 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी की बात करता है. सबसे पहली है नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी दैट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 352. द सेकंड वन इज प्रेसिडेंट्स रूल, जो अभी हमने देखा कि मणिपुर में दे हैव applied this president's rule, so that is the second type of emergency which is under article 356. The third type of emergency is under article 360, that is the financial emergency. तीनों की conditions वगैरह some differences are there. इसमें तीनों की conditions पे किस तरीके से लगाएगी. So when we talk about national emergency, तो national emergency में important provision क्या है, what are the grounds of national emergency? So you can see that war, external aggression and armed rebellion, these are basically the grounds, जिन grounds पे national emergency लगा दी जाती है. And some changes however came here after the 44th amendment act. So 44th amendment act जो हमारा था, that was in 1978. तो वहां पर कुछ changes यहाँ पे आए थे because this provision was used by Indira Gandhi government in 1975. So when we talk about national emergency, यहाँ पे आप देखोगे कि the validity जो इसको basically special majority से पास किया जाता है और उसकी validity जो रहती है that is for 6 months. मतलब अगर आपको continue करना है तो you will have to again pass the whole proposal regarding the national emergency, or again president is the one who will apply all of this. Second, president's rule जो हमारा है, that is the president's rule में generally क्या होगा कि यहाँ पर you will see that the दो articles हमारे पास है. article 356 जो कहता है that if failure of constitutional machinery happens, then president's rule will be applied in a particular state. Or the second provision is regarding that if a state
fails to comply with the direction of the center. तो दो आर्टिकल्स हैं जो हमें बात करते हैं regarding the president's rule. So this is the second type of emergency, and third type of emergency is the financial emergency. अभी तक का ये इंडिया में नहीं लगी है. Again, president ही इसको लगाएगा depending upon the financial circumstances of the country. So this was the second news for the day, that is the state of Manipur. और वहां पर सबसे ज्यादा बार 11 बार वहां पर अभी तक का president rule लगाया जा चुका है. That is maximum time this has been applied in this particular state. That is मणिपुर में सबसे ज्यादा बार ये लगा दिया है. यहाँ के जो outgoing chief minister थे, he was Mr. N. Biren Singh, and मणिपुर में जो clashes चल रहे हैं from the last 2 years, that is between two tribal groups, that is the Meiteis and the Kukis. दो communities हैं, Meiteis और Kukis, इनके बीच में the whole scenario is going on, that is the clashes are going on. So these are the important provision from this particular part. Remember the static part, that is article 356 किससे belong करता है, that is regarding the president's rule. And another article is article 365 as well, जिसके थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है इन द स्टेट. एंड this is basically the important one, that is national emergency की जब हम बात करते हैं, article 352 it talks about national emergency. You can see that it has to be approved within 6 months. आप 6 months के लिए आपको हर 6 महीने में आपको इसको अप्रूवल इसका करना पड़ेगा. प्रेसिडेंट रूल में however the thing is that कि basically it has to be approved by simple majority. President's rule में simple majority का basically the main thing is that कि if the president rule expires after 2 months unless extended to 6 months by the parliament with simple majority. मतलब 6 महीने के बाद अगर इन्होंने basically it will expire after 2 months, 2 महीने के बाद expire हो जाएगा unless it is extended to 6 months. अगर उसको पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल नहीं देती तो it will be extended to 6 months by this particular time period. So remember this is the important provision. Articles at least try to remember कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है. So this was the news for the second news for the day. Moving on, the next one is a news regarding Vijayadurg. So we have the Fort William at Calcutta. एक time period पे this was the seat of East India Company in India. So this Fort William, इसका नाम बदल के we have changed the name of this particular place. It has been named now as this विजय दुर्ग. इसका नाम बदल के फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, that is उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया. And remember this particular place, this is also the headquarter of Eastern Army Command. जो हमारी आर्मी की जो ईस्टर्न आर्मी कमांड है उसके हेडक्वार्टर्स आर आल्सो इन दिस पर्टिकुलर फोर्ट, दैट इज द फोर्ट विलियम, व्हिच विल नाउ बी नोन एज द विजय दुर्ग. इसको अब विजय दुर्ग नाम से बोल दिया. द नेम हैज बीन चेंज्ड टू विजय दुर्ग. सो इसकी बात जब हम करें, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, कैन नॉट वेरी important, but still 1696 में the old William Fort जो था उसकी foundations रखी गई थी, but it got destroyed during this whole battle of Plassey वाला जो event चलता है between the Nawab of Bengal, that is Sirajuddaula, and the East India Company. तो उस time period में the fortifications of this old Fort William were destroyed. So 1758 में after the win of East India Company in the battle of Plassey, जो रॉबर्ट क्लाइव, that guy who was the commander of East India Company during the Battle of Plassey, this guy laid the foundation for this Fort William, और 1781 तक का ये complete हो चुका था. After that it remained the seat for East India Company for, and along with that the British government as well for a very long time period. अब यहाँ से एक और important provision आता है, that is regarding the name of Robert Clive. Robert Clive की जब हम बात करें तो Robert Clive is a very I would say one of the earliest commanders of East India Company who won in India, and under his command, Robert Clive की command के under ही East India Company defeated the Nawab of Bengal, that was Sirajuddaula. Sirajuddaula को इन्होंने this Nawab was defeated in Sirajuddaula was defeated in Battle of Plassey in 1757. तो वहां पर जो East India Company की armies थी, they were led by this guy called Robert Clive. And Battle of Plassey, remember, it is a very important battle when we talk about modern India. Modern India की बात करेंगे तो this is one of the most significant battles of this particular time period, along with a different battle, that is the Battle of Buxar, which happened in 1764. So ये दो battles जो है early modern Indian history के बारे में जब हम बात करेंगे तो these two will be the most significant battle, after which the East India Company will be able to hold their power in India. They will become the masters of India after their win in the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. So ये दो important battles हैं. So remember the dates, and remember Battle of Plassey was fought between East India Company and the Nawab of Bengal, that was Nawab Siraj-ud-Daulah.
So this one, that is the Battle of Plassey, it was fought between Nawab Sirajuddaulah and the East Indian Company's army. When we talk about the Battle of Buxar में there were 3 armies which were opposing the East India Company. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नवाब ऑफ बंगाल, that was मीर कासिम, और नवाब ऑफ अवध, that is शुजा-उद-दौला, and the Mughal emperor at that time, that was Shah Alam II. So इन तीनों की, ये तीनों की combined armies were defeated in the Battle of Buxar. खैर ये important नहीं है नाम, but at least remember the name, remember the date, try to remember the dates of these particular battles. So Vijayadurg, the Fort William of Calcutta, it has been changed, इसका नाम change करके Vijayadurg कर दिया गया है. And remember this was once the seat of power of East India Company and British government in India, and इट वॉज ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इंडिया की जो ईस्टर्न आर्मी कमांड है, हमारी जो आर्मी है उसकी ईस्टर्न कमांड जो है उसके हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर है, एंड नाउ इट विल बी नोन एज द विजयदुर्ग. खैर दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट वाज फाउंडेड, हु वाज फाउंडेड. द इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज द नेम ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी. एंड देन देयर इज द बैटल ऑफ बक्सर एज वेल, जो इसी टाइम पीरियड में, इसके 7 साल बाद होता है, दैट इज इन द 1760 year of 1764. The last important fact from this particular one is that इसी फोर्ट में, इन दिस सेम फोर्ट वी हैव अ वॉर मेमोरियल, जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो था बिटवीन एंड द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट वाज फॉट. तो उस वॉर का वॉर मेमोरियल इज आल्सो इज इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज द विजयदुर्ग. तो विजयदुर्ग में ही हमें वो मेमोरियल हमें मिलता है, दैट बिलोंग्स टू द वॉर ऑफ 1971. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज. दिस इज बेसिकली द फोर्ट विलियम, जो विजयदुर्ग जिसका नाम चेंज कर दिया, तो यही वो बिल्डिंग है. यू वुड हैव सीन इट इन अ लॉट ऑफ बुक्स, हिस्ट्री बुक्स में आपको जनरली देखने को मिल जाती है. सो sorry, this is the next news for the day. So moving on, the next one is the corruption perception index. Corruption perception index, it is an index which basically tells how corrupt the countries are. तो कंट्रीज के करप्शन का परसेप्शन देता है, बेसिकली टेल्स की कितनी करप्शन लेवल है किसी कंट्री में. एंड रिमेंबर this is published by a NGO, a Germany based NGO, that is Transparency International करके there is an NGO. तो उस NGO, वही NGO ये डेटा पब्लिश करती है रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज द रैंक ऑफ इंडिया विच इज 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो इंडिया की जो रैंक है दैट इज 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग, पहला कौन पब्लिश करता है, इट इज द organization that is Transparency International that publishes this particular index. Second thing, the rank of India which is 96 out of 180 countries. तो यहाँ पे another important thing is that least corrupt countries की जब हम बात करें तो you will see that Denmark, Finland and Singapore, these 3 countries, they are the least corrupt nations. और most corrupt nations की बात हम करते हैं तो South Sudan, which was again was bifurcated from the country that is Sudan in Africa. Then उसके अलावा सोमालिया जो कंट्री है, very famous for its pirate, that is this is nearby the Horn of Africa. जो Horn of Africa उसके पास में हमें कंट्री मिलती है, and Venezuela in South America. तो ये 3 countries have been named as the most corrupt countries in the world. खैर ये this is not very important, these points are important. Transparency International इसको पब्लिश करता है और इंडिया की रैंक इज 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एज पर द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. सो दिस इज द ग्लोबल मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. जनरली इस इंडेक्स में क्या रहता है, दैट देयर इज अ स्कोर इज गिवन दैट इज फ्रॉम 0 to 100. 0 मींस वेरी करप्ट, 0 मींस जो ये जो रेड शेड आपको डार्क रेड शेड दिख रहा है दैट मींस वेरी करप्ट, एंड 100 means that the country is clean, मतलब वहां पे corruption levels are low. So you can see that western यूरोप वाला जो रीजन है दैट इज स्कैंडिनेविया वाला, बाल्टिक नेशन जहां पे है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाला रीजन है, वी हैव सिंगापुर हियर, प्लस कनाडा वी हैव हियर. So these are the, and Japan as well. So these are, you can say, some of the least corrupt nations in the world. So this is basically the corruption perception index. Remember the major thing, that is it is published by Transparency International, and India की रैंक कितनी थी, that was 96 out of 180 countries. So that is all about this one. Moving on, the next one is regarding a scheme called PM फसल बीमा योजना. Now remember ये एक old scheme है, 2016 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है. और बेसिकली ये स्कीम किस चीज के लिए, दिस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज टू द फार्मर. जो फार्मर होते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, तो उनको
to save these people from various type of natural calamities and other destructive events, तो उनकी क्रॉप को कवरेज दिया जाता है, बेसिकली इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज द पीएम फसल बीमा योजना. अभी न्यूज में इसीलिए थी बिकॉज दिस हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर वन मोर ईयर, दैट इज 2025-26 तक का इसको कंटिन्यू टू टिल दैट फाइनेंशियल ईयर दिस हैज बीन continued. So this is the PM Fasal Bima Yojana. Budget में this was announced that this scheme was continued for this financial year as well. So basically important चीज यहाँ पे क्या है, first of all PM Fasal Bima Yojana, when was this launched? It was launched in 2016. होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली आपको क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराया जाता है टू द फार्मर्स. एंड देयर इज अनदर थिंग हियर दैट जो फार्मर्स जो हैं दैट इज इट इज वॉलंटरी फॉर दीज पीपल. मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि हर एक फार्मर वहां पे ज्वाइन करेगा. दिस पर्टिकुलर स्कीम इज वॉलंटरी इन नेचर. जो फार्मर ज्वाइन करना चाहता है, जो फार्मर इसका बेनिफिट लेना चाहता है, ही कैन गो एंड डू दैट. इट इज नॉट कंपलसरी बट रादर वॉलंटरी. बेसिकली होता यह है कि आपकी इंश्योरेंस की कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है कि कितनी क्रॉप्स आपने लगाई हैं, कितना कवरेज उसका टोटल है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस फाइनेंशियल, उसको टर्म्स पे जब हम व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, कितना टोटल कवरेज है, उसी टोटल कवरेज का देन सम ऑफ द प्रीमियम हैज टू बी पेड बाय द फार्मर. तो ये प्रीमियम थोड़ा सा चेंज है, दैट इज खरीफ क्रॉप जो हमारी होती है, जो समर क्रॉप्स हमारी होती है जैसे राइस, तो उस केस में 2% प्रीमियम जो टोटल इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा उसका 2% हैज टू बी गिवन बाय द फार्मर. सिमिलरली राबी क्रॉप की जब हम बात करते हैं, दैट इज विंटर क्रॉप जो हमारे पास होती है, एग्जांपल वुड बी व्हीट, तो यहां पर 1.5% प्रीमियम हैज टू बी गिवन बाय द फार्मर. तीसरा जो है दैट इज फॉर कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. जो कमर्शियल क्रॉप्स है, प्लांटेशन वगैरह, कॉफी, रबर, टी एंड ऑल, और या फिर आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फ्रूट्स वगैरह जो आ जाते हैं, तो इसमें प्रीमियम इज 5%. So these are the premium amount that has to be paid by the farmer. फार्मर को ये प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे पे करना पड़ेगा if he joins this particular scheme. But this will basically be like कि if any like you can say natural calamity occurs, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिससे इनकी क्रॉप वगैरह बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो देन दे विल गेट द मनी व्हिच हैव बीन insured. So that is the thing with this particular scheme. So PM Fasal Bima Yojana, it was launched, it was approved on 30 Jan 2016. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें कवरेज है, फॉर एग्जाम्पल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड है, हेलस्टॉर्म्स है, ओले जो पड़ते हैं, या फ्लड्स हैं, या ड्राई स्पेल्स हैं, ड्रॉट वगैरह हैं, तो इस केस में कवरेज प्रोवाइड कराई जाएगी. सिमिलरली पेस्ट अगर आके आपकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी क्रॉप को, तो तब भी आपको कवरेज प्रोवाइड कराई जाएगी. एंड ऑल्सो साइक्लोन्स वगैरह से या फिर अनसीजनल रेन्स की वजह से भी आपकी क्रॉप को कोई डिस्ट्रक्शन होता है, then again you will be provided with the insurance coverage in that case as well. So this is the main provisions of this scheme, that is the PM Fasal Bima Yojana. Remember this is an old scheme but अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक साल के लिए. So PM Fasal Bima Yojana launched in 2016. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इज रिगार्डिंग द प्रीमियम्स. सो फार्मर को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 2% इन केस ऑफ खरीफ, 1.5% इन केस ऑफ राबी क्रॉप, और कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो 5% इनको प्रीमियम देना पड़ेगा. दैट विल बी द रेट ऑफ प्रीमियम. तो टोटल इंश्योर्ड अमाउंट लेट्स से फॉर एग्जांपल इज 1000 रुपीज, जस्ट एन एग्जांपल. तो 1000 का 2% दैट इज 20 रुपीज would be given by the farmer himself. So इस तरीके से बेसिकली द थिंग विल गो ऑन. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर इसी स्कीम के अंडर एक फंड को लॉन्च किया गया है, दैट इज नोन एज द फियाट फंड. सो फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, दिस पर्टिकुलर फंड हैज बीन अप्रूव्ड, दैट इज Fund for Innovation and Tech. So remember the name, that will be more than enough. Fiat करके there is a fund. Mains में आपका this can become a very important point GS3 में when we talk about agriculture. So a new fund has been approved under the same scheme, that is PM Fasal Bima Yojana, that is Fund for Innovation and Tech. So this is all about this particular scheme as well. Moving on, आगे बढ़ते हैं. We have a global event अभी हुआ था, that is the Bharat Tex 2025. So this was a global textile event which was done in New Delhi. So New Delhi में अभी recently एक event हुआ, that was the Bharat Tex 2025, and this was a global textile event. So ये one important fact that comes up from this part is this कि Bharat Tex जो event था कहाँ पे हुआ, it was in New Delhi. Now important part is regarding the textile sector of India. इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर. दुनिया का छठा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है इंडिया. अनदर थिंग इज दैट
important है कि 45 million people are employed in this particular sector. So very important sector when we talk about it will be a labor intensive sector. So यहाँ पर 45 million people, that is 4.5 crore people have been employed under this particular sector. तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है. पहला ग्लोबल टेक्स, दैट इज दिस भारत टेक्स इवेंट 2025 कहाँ पे हुआ? इट वाज इन न्यू दिल्ली. सेकंड थिंग, इंडिया की जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द टेक्सटाइल सेक्टर, तो वी कैन सी दैट इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड 45 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. सो टेक्सटाइल रिलेटेड सेक्टर में मेंस के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप यूज कर सकते हो इन अ लॉट ऑफ आंसर इफ इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इफ दे आर लाइक टेक्सटाइल रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज टेक्सटाइल से एक और रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट इज पीएम मित्रा पार्क स्कीम. सो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस स्कीम के अंदर बेसिकली हुआ क्या है कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. मतलब इस स्कीम का जो टारगेट ये है कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड. मतलब देयर विल बी लाइक जहां पर बेसिकली यू कैन सी दैट इट विल बी अ एरिया, इट विल बी अ काइंड ऑफ यू कैन से कि यार रीजन जहां पर टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन, उनकी मार्केटिंग, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग विल बी देयर. सो टू improve all of this, PM Mitra Park scheme was announced by the government, that is under the Ministry of Textile itself. So this is the last important part from this one, that is भारत टेक्सटाइल इवेंट कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ. ठीक है. एंड इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल्स. प्लस वी हैव द स्कीम दैट इज पीएम मित्रा पार्क स्कीम. तो पीएम मित्रा पार्क स्कीम किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द टेक्सटाइल सेक्टर. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्कीम? इट इज दैट 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन 7 डिफरेंट सिटीज. तो 7 अलग अलग जगहों पे मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या किए जाएंगे? दे विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच विल अगेन लीड टू ग्रोथ इन द टेक्सटाइल सेक्टर. तो टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए बेसिकली दिस इज बीइंग डन. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन वी हैव दैट Indonesia has become the latest member of the grouping that was earlier known as BRICS. So BRICS जो है, that is earlier it was a grouping, an informal grouping of 5 nations, that was Brazil, Russia, India, China and South Africa. तो उसमें recently last year 4 member और ऐड हुए थे और इस साल the first member to join this particular grouping has been Indonesia. तो Indonesia has become the 10th country to join the BRICS ग्रुपिंग. तो ब्रिक्स ग्रुपिंग की जो 10वीं कंट्री है दैट इज बीन इंडोनेशिया. 5 यहाँ पे ओरिजिनल कंट्रीज है जिनसे ये नाम आता है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. देन 4 अदर कंट्री ज्वाइन लास्ट ईयर, दैट इज ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई. तो ये 4 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर 2024. 10th कंट्री इज इंडोनेशिया. एंड दिस इज बेसिकली दिस वाज द न्यूज है. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देयर कैन बी लाइक दे कैन आस्क which country, direct question आपके पास आ सकता है, which country has become the 10th member. So answer is Indonesia. और they can give you a number of countries और वहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि यार which of the following country does not belong to the grouping. तो ये countries you will have to remember which countries are the member of this particular grouping. You will have to remember these 10 countries name. Remember one more thing, last year Saudi Arabia was also the one जिससे बोला जा रहा था कि this country is also going to join this particular grouping, but Saudi Arabia ने अभी तक का ज्वाइन नहीं किया है. They have not yet joined this particular grouping. There are only 10 members. Official sites में आप जाके देख सकते हैं कि only सिर्फ 10 मेंबर यहाँ पर हैं. That is Brazil, Russia, India, China, South Africa, Iran, Egypt, Ethiopia, UAE and Indonesia, which has become the latest member. Now, important fact about this whole grouping, that is BRICS. तो BRICS जो term है, that was given by an economist by the name of Jim O'Neill. तो 2011 में इन्होंने ये नाम यहाँ पर दिया. खैर ग्रुपिंग उससे पहले किया, but this name was given by this guy, that is Jim O'Neill. Then पहला समिट जब हम बात करेंगे, ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था, that was in Russia in the year 2009. 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था, that was in Russia. और जो 16th समिट हुआ है, that is the latest summit जो अभी हुआ था ब्रिक्स का, that also happened in Russia, that is in a place called Kazan. तो 2024 वाला जो समिट था, that was the 16th summit and it also was conducted in Russia as well. Then when we talk about this particular grouping, तो पहला समिट 2009 में हुआ था, उसके बाद जो सेकंड समिट हुआ था, that was in 2010. 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स. सो रिमेंबर ओरिजिनली देयर वर 4 नेशन, दैट इज this particular grouping BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. और फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो इट बिकेम BRICS, that is BRICS. So just remember this particular thing. So the latest summit also was conducted, it was held in
रशिया एज वेल। अब इसी बैंक में, सॉरी, इन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला है, देयर इज अ बैंक हियर that is known as the New Development Bank which was established in 2015। तो जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है उनका एक अपना बैंक है, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक क्या करता है, दिस बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू वेरियस लीस्ट डेवलपिंग और पुअर इनकम कंट्रीज जो हैं, उन कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए दे बेसिकली गिव लोन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक, दैट इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एजेस ऑफ ब्रिक्स इन 2015। एक दूसरी चीज जो यहाँ पे है, दैट इज द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। सो एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, तो कंट्रीज जो होती हैं, अगर वहां उन कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड अगर कोई भी क्राइसिस रहता है, जैसा इंडिया में 1991 में आया था आफ्टर विच द रिफॉर्म्स वर ब्रॉट। सो इस टाइप का अगर बीओपी रिलेटेड कोई भी क्राइसिस है, तो उसमें कंट्रीज की हेल्प करने के लिए देयर इज अ रिजर्व फैसिलिटी अवेलेबल अंडर दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, दैट इज द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और इसका जो द होल you can see it is US dollar 100 बिलियन, इसकी जो टोटल द कैपेसिटी इज US डॉलर 100 बिलियन। तो किसी भी कंट्री, जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज है, उनमें अगर कोई बीओपी क्राइसिस रहता है, तो वहां पर रादर देन गोइंग टू द IMF दे कैन गो टू देयर दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, जहां पर उनको कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के थ्रू दे कैन गेट द मनी टू सॉल्व देयर बीओपी क्राइसिस, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट crisis। So this was all about this particular one, that is Indonesia. This has recently become the 10th member of BRICS। और BRICS की ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं, you have to remember the names: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Iran, Ethiopia, Egypt and UAE along with Indonesia. These are the 10 members. BRIC, the name BRIC was given by Jim O'Neill, an economist, in 2011। पहला समिट रशिया में हुआ था 2009 में, और 2010 में फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। रिसेंट जो समिट हुआ है वो 16th समिट था, एंड इट वाज कंडक्टेड इन रशिया अगेन, कजान में रशिया में हुआ था। देन दो चीजें यहाँ पे हैं, और रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेंस में भी आप इनको यूज कर सकते हो। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके पास है, दैट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव थ्रू विच loans will be given for development purposes in the least developed country। जो least developed countries है, उनको development facilities provide करने के लिए इस बैंक के थ्रू loans will be given। and then contingent reserve arrangement भी हमारे पास है, जो किसी भी जो member countries हैं, उनमें अगर कोई BOP crisis आता है, तो they have this particular reserve facility available, जिसकी capacity is US dollar 100 billion। so this is all about this particular news। this is basically the map, कौन कौन सी countries हैं, so you can see this is Russia, China, India, South Africa, Brazil। These are the, ये इसमें से भी not South Africa but Brazil, India, China, Russia, these are the 4 original member। South Africa joined in 2010। उसके बाद some of the members, okay, they have given new members, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया इन्होंने दिया हुआ है, but this is not one of the new members। Saudi Arabia did not join, but other nations like UAE की बात करें हम, या फिर ईरान की बात करें, दिस इज बेसिकली ईरान, दिस इज इथोपिया, एंड यहाँ पर UAE भी हमें मिल जाएगा। along with that Egypt is also here, and recently Indonesia has become the 10th member। so this is the whole grouping that members Russia, China, India, Indonesia, this is Iran, this one is Egypt, and this one is Ethiopia। So these are the member nations of this particular nation, that is the BRICS। Argentina is also, they also, जब यहाँ पर recently last year में there was the government change, जेवियर मिलियो की गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद से Argentina also declined to become a member of this particular grouping। so अभी जो currently members हैं, these are the members। so remember the names, यहाँ से questions आ सकते हैं। moving on, last news for the day, that is the कैलाश मानसरोवर यात्रा। आप सभी को पता होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, उत्तराखंड से ही जाती है। so this यात्रा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 2020। 2020 में सस्पेंड कर दी गई थी ये पूरी की पूरी यात्रा, मेनली बिकॉज ऑफ द गलवान कन्फ्लिक्ट दैट हैपेंड इन लद्दाख। लद्दाख में जो गलवान कन्फ्लिक्ट हुआ था, जहां पे लॉट ऑफ सोल्जर्स डाइड एज वेल, तो उसकी वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से दिस यात्रा वाज सस्पेंडेड, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे आर कंटिन्यूइंग इट। सो जून 2025 से ये यात्रा दोबारा से कराई जाएगी, दैट इज द कैलाश मानसरोवर यात्रा। रिमेंबर कैलाश मानसरोवर यात्रा, इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो ये मिनिस्ट्री ये करवाती है। और देयर आर टू वेज, दैट इज दो रूट है कैलाश मानसरोवर में जाने के लिए। द फर्स्ट रूट इज फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो यात्रा जाती है, दैट इज लीपू लेक पास करते हुए, पिथौरागढ़ में जो लीपू लेक पास है,
उसको क्रॉस करते हुए वन रूट इज दैट. द सेकेंड रूट इज फ्रॉम नाथुला पास. सिक्किम में जो नाथुला पास है उस रूट से ये पर्टिकुलर यात्रा भी करवाई जाती है. सो यू कैन सी द रूट. पहला रूट आप यहां से है पिथौरागढ़ होते हुए जो रेगुलरली यहां से जाती है. वी हैव दिस आदि कैलाश वाला जो रूट है उसी को आगे की तरफ से देयर वाज अर्लियर दिस वाज दिस होल पैदल मार्ग था पहले. बेसिकली यू हैव टू वॉक बट नाउ दे हैव मेड द रोड टिल आदि कैलाश एंड ऑल. सो ये वाला जो रूट है दिस इज द रूट दैट गोज फ्रॉम लिपू लेक पास. दूसरा जो रूट है वो जाता है कहां से? नाथुला पास से. सो दीज आर द टू रूट जहां से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेसिकली कंडक्ट दिस होल यात्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलाश मानसरोवर यात्रा. रिमेंबर इतना खैर इतना इंपॉर्टेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है बट दिस थिंग यू शुड रिमेंबर इट वाज सस्पेंडेड इन 2020. इसका सस्पेंशन 2020 में हुआ था मेनली बिकॉज ऑफ द गलवान इंसिडेंट. उसके बाद से फिर देन आफ्टर दैट कोविड आल्सो हैपेंड. सो दिस यात्रा इट रिमेन सस्पेंडेड बट 2025 इस साल से यानी कि जून से अगेन दिस यात्रा विल बी स्टार्टेड. एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? दीज टू पासेस दैट इज लिपू लेक पास. यहाँ पर जो हमें मिलता है दैट इज ट्राई जंक्शन है इंडिया नेपाल चाइना का. वहां पर लिपू लेक पास हमारे पास है. सिमिलरली यहाँ पर भी इंडिया दिस भूटान सिक्किम और चाइना का जो पास है दैट इज दिस होल ट्राई जंक्शन वाला जो एरिया है डोकलाम के पास में वहां पे वी हैव दिस नाथुला पास. तो इन दोनों से ही द रूट्स विल बी गोइंग. सो दिस वाज द लास्ट न्यूज फॉर द डे. So that is all about this particular current affairs. So this is the first part. Feb current affairs का पहला part ये था. We'll be coming up with the second part as well. So this was basically all. एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि आपके पास जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर जनरली वन लाइनर्स एंड ऑल. सो वन लाइनर्स के लिए देयर विल बी अनदर वीडियो जहां पे ओनली वन लाइनर्स लाइक सम ट्रिवियल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड एंड ऑल. सो दिस ये वाली जो चीजें हैं यहाँ पे बेसिकली आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू द करंट अफेयर्स बट अलॉन्ग विद दैट सम स्टैटिक पोर्शन. तो आपका रिवाइज भी आपने इसके साथ कंटिन्यूअसली करते रहना है जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन आ रहा है बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता बट स्टैटिक पोर्शन इज समथिंग यू विल हैव टू फोकस on a lot. So that was basically all about this whole thing. So we'll be meeting in the next video then. Thank you.